knows Bakshatti ji is filing advance ruling on this कि जो बुलियन और गोल्ड सप्लाई करते हैं तो जो ज्वेलर है वो किसके ऊपर जीएसटी लगाएगा, होल वैल्यू इंक्लूडिंग गोल्ड के ऊपर या सिर्फ मेकिंग चार्जेस के ऊपर? यही सवाल है ना, 3% जीएसटी ऑन गोल्ड वैल्यू। लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स तो है ही नहीं ना। ओके, तो कैसे ड्राफ्ट करेंगे सर इसको? वैसे स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पहले लिखिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में आपको यही लिखना है अबाउट द टैक्स पेयर, जीएसटी एंड बिजनेस एड्रेस। फिर आपको ये लिखना है ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है। ओके ओके ओके। कस्टमर प्रोवाइड्स बुलियन, फिर या फिर ओल्ड गोल्ड और गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी। ठीक है ना, आपका मोटा मोटी फैक्ट ये है। whether there exists a supply value of whether the what is the value of supply, whether the value of supply shall include value of old gold or ओनली लेबर का। तो सवाल आपको पता नहीं है, टैक्स रेट तो आपको क्लियर कट है। देखिए इसने क्या लिखा, नेचर ऑफ बिजनेस, द टैक्स पेयर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग and trading of gold, ornaments, jewelry and precious stones. The business involve both sale of ready-made jewelry and manufacture of customized ornament based on customer requirements. तो ये आपके लिए important है। Nature of transaction, in the regular course of business, customers visit the store with their own gold in various form, including bullion, old gold ornaments or jewelry. These items are voluntarily handed over to the taxpayer by the customers who expresses their intention to exchange the same for new jewelry of contemporary design, either from available stock or on a made to order basis. Customers request, the customer specifically demands that in lieu of the old gold jewelry bullion, new jewelry with updated design and specifications be provided. This is not a simple buyback or resale transaction, but a composite transaction involving receipt of customer supplied material and supply of new goods and services. Process. The old gold jewelry provided by the customer is accepted by the taxpayer as material supplied by the recipient for the purpose of executing a works contract for the purpose of manufacture of new jewelry. Works contract में जानबूझ के ये word use नहीं कर रहा हूँ कि works contract is related to immoral property, तो उस word को हटा दिया। The taxpayer uses this old gold after necessary purification as raw material and converts it into new jewelry as per customer's requirement. During the manufacturing of new jewelry, taxpayer may also add additional components such as new gold, precious, semi-precious stones, diamonds and designer element that are not part of the original material supplied by the customer. Whether the activity of receiving old gold or jewelry bullion from a customer for the purpose of making new jewelry as per customer specification constitutes supply under section 7, whether the activity of supplying new jewelry to the customer amount to supply under GST and whether such supply is taxable under CGST Act. ऑब्वियसली टैक्सेबल तो है ही। ये दोनों क्वेश्चन आप हटा सकते हैं बक्सेट्टी जी, आपको तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि सप्लाई है या नहीं है। सप्लाई तो हर हालत में टैक्स रेट भी मालूम है, टैक्स रेट भी पता है। आपको सवाल ये पूछना है, what shall be the value of supply under section 15 in the case where the customer provides old gold jewelry as consideration in kind and the supplier adds new gold and other materials and supplies new jewelry to the customer, specifically whether the value of old gold jewelry received from the customer shall be included in the value of supply for the purpose of charging GST. ये दोनों आप हटा सकते हैं, क्या कहते हैं? यस सर, हटा जी जी। और ये क्वेश्चन भी जब ठीक से नहीं हुआ, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 वेयर द कस्टमर प्रोवाइड्स। हाँ, इसमें सब कुछ आ गया है ना। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आ गया, नाउ आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके। अब जैसे अमित जी बोल रहे हैं, कोई सर्कुलर आया कि सेपरेटली ही होगा, ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी रिसीव फ्रॉम कस्टमर वो उसका पार्ट नहीं होगा, करेक्ट है ना? करेक्ट। तो अब आपको डिस्कशन ऑन लॉ सर्कुलर जो अमित जी बता रहे हैं, ओके। गोल्ड नॉट पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, न्यू गोल्ड इज पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये सब आपको लिखना है। लेकिन बेसिकली आपका क्वेश्चन तो यहीं पर आके अटका हुआ है। करेक्ट। और सोचिएगा, इसमें मुझे कुछ है ना, कोई ऐड करना चाह रहा है इसमें, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है सर। फैक्ट में मेरा ओपिनियन क्या है उसको भी ऐड करना है। ये यहाँ ऐड कर रहे हैं हम लोग, तो फैक्ट में ऐड कर, ये भी फैक्ट में डाल दें? यस सर। ओके ठीक है, ये भी डाल दीजिएगा फैक्ट में। चलेगा। अब आपने जो बनाया है एक बार वो देख लेते हैं। हाँ बोलिए रविनारायण जी। और बॉक्सिटी जी को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, उनके बहुत सारे आर्टिकल्स है
बहुत सारे हैं। मैं एक गोल्ड का किया था, नहीं, तो मेरे पास एडवांस रूलिंग भी निकाला है सर मैंने, जो कर्नाटका है, कर्नाटका का है, इधर महाराष्ट्र का है, वो भी एडवांस रूलिंग तमिल, निकाला है मैंने। हाँ हाँ, तो वो तो उसमें वो सब भी ऐड करना होगा ना आपको। जी वो जी सारे जी। लिटरेचर देना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ 13 में ये दो दो पॉइंट को मैंने टिक मार्क कर दिया है। आपका क्लासिफिकेशन का तो केस ही नहीं है ना। ओके आपका केस ये है डिटर्मिनेशन ऑफ, नहीं, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये है आपका केस। ओके। और लास्ट वन इसमें 7 नंबर। डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ये आपका है। ठीक है, ओके ओके। आईटीसी का इशू नहीं है, हाँ ना। आरसीएम या फॉरवर्ड चार्ज है उसका इशू नहीं है, रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट है या नहीं है उसका इशू नहीं है, और वेदर सप्लाई है या नहीं है ये भी इशू नहीं है आपको। ओके ओके ओके, बाकी तो ये एनक्लोज देखिए, करना पड़ता है सब। स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट्स हैविंग ए बियरिंग ऑन द क्वेश्चन रेज, समझ गए। आपको जी वही जी जी। स्टेटमेंट लिखना है जो हाँ क्वेश्चन आपने पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड फैक्ट्स होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर स्टेटमेंट्स कंटेनिंग द एप्लीकेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, जी तो आपका व्यू पॉइंट जी। है ना, वो हाँ आपको सर, हाँ सर। लिखना पड़ेगा। तो वो कैसे लिखेंगे जब आप सर्कुलर सेक्शन 15 का इंटरप्रिटेशन और बाकी हाँ, और सर्कुलर्स, बाकी एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग, हाँ जी, हाईकोर्ट हाँ के जी। केसेस, जी जी जी। ये सब आपके वो पास होने चाहिए तब। जी जी, वो किए, इकट्ठा किए मैं सब। हाँ, वो भी एक बार वो सब इकट्ठा एक बार दोबारा दिखाइए, इसमें तो कोई लास्ट डेट होता नहीं है। ना 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 ना। हाँ फिर ठीक देखते हैं। ठीक, ओके सर, ओके। Want to master GST litigation? Join our YouTube channel today. Simply click the subscribe button and then hit join. Once you click join, you'll find 5 levels to choose from. Start with just $199 to learn the basics of GST, or go for $599 to dive into handling GST notices like a pro. We promise you the best GST learning experience. Join now and take your GST knowledge to the next level.